कोई अफ्रीका में एक सेल्समैन जाता है तो बोलता है गलत मार्केट है यहाँ पे, तो कोई शूज नहीं पहनता है। दूसरा बोलता है कि जितने शूज बना सकते हो उतना भेज दो, यहाँ पे कोई शूज नहीं पहनता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। एंड इज पीस ऑफ माइंड नॉट एन अल्फा? And is security selection the alpha? And is security selection the only alpha? Have you seen a number which says that instead of doing ABC security, if you would have done PQR security, you would have earned double than the Nifty? I have not seen that data. Security selection alpha is a question mark. When you look at a very long-term, return performance, the underlying returns comes from the asset class, and you have these various forms of securities. We are not sure if there is so much of an alpha in the security selection, A versus B versus C. We feel the alpha formula is ABC, asset allocation behavior compounding. वो मतलब 60 के रिटायरमेंट की तो मतलब सोच ही नहीं रहे हैं कोई, पर सभी को ये जरूर है कि मतलब मेरे को फायर करना है। अब मैं आरई के बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं एफआई के बारे में बहुत श्योर हूँ कि इट्स हमेशा ये अच्छी बात है कि हमारे पास कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। तो फिर कब मन कर दिया, हमने लाला को कह दिया नहीं चाहिए तेरी नौकरी, तो वो बोलने के लिए अपने पास पैसा भी तो होना चाहिए। Hello, and welcome to another episode of Desi Fire podcast. Today, I am in Bombay to record a few episodes, and I'm joined by Rohit. Rohit is a SEBI registered investment advisor, and he runs the firm GYR Financial Planners. So, welcome, Rohit. Welcome to the show. Thanks, Ravi. Rohit, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि RIA is essentially what you do. There are also RAs, there are also MFDs, there are also insurance salesmen, there are also wealth managers which are there with the banks. Can you just give me a brief idea of how an RIA is different from the others? SEBI is regulating this in the country, and they've stated that an investment advice needs to be rendered by a SEBI registered entity. And when you want a financial planning, a goal-based, holistic advice, then you need to work with a registered investment advisor. An RA, a research analyst would work with a standard kind of a portfolio, one-to-many approach, but they wouldn't customize it for you. They wouldn't give you an asset allocation. So that's like an RIA versus an RA. Then you have a product approach. You can work with intermediaries, you can work with distributors. If you want mutual fund, you can go to mutual fund distributors. You want insurance product, then insurance agents can help you. You mentioned about the wealth management outfits, you mentioned about these banks, associated teams. So some of them work in a distribution format, some of them, may have taken an RIA approach. So it depends upon the need that one has. If somebody wants a holistic financial planning and a fiduciary fee only structure, then it's better to work with an RIA. Somebody just has a surplus that you need, somebody to look after, and you don't have a lot of time, you don't mind paying a commission via the NAV, then it's okay to even work with a mutual fund distributor. Okay. So I'd like to know a little bit more about the wealth manager aspect जो कि banks में रहते हैं. तो आई अंडरस्टैंड इंश्योरेंस एजेंट के पास में जाऊंगा तो वो मेरे को इंश्योरेंस ही देगा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाऊंगा मेरे को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही देगा, बट मैं वेल्थ मैनेजर के पास में जाता हूँ तो वो तो मेरे को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एंड दीज आर गिवन बाय बिग बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, उनके वेल्थ मैनेजर्स होते हैं. हाउ वुड एन RIA कंपेयर्ड विद दोस गाइज? I think we have to look at this in terms of one, what is the need that an investor has versus what are the characteristics or the features that one is looking at. Some of the names that you mentioned, they might have very deep institutional research capability, they might have very large team. Let's say if they're doing the 50,000 crores of the asset under management, they might be in a position to give you far better option when it comes to a product. And I'm not sure whether they can give you that individual attention, they can help you to customize your financial plan, they can do a regular review. I'm not sure if some of these are driven by an asset gathering approach
That means the only approach is to come and sell you something, right? Get that money out of you. So it works differently, depending upon, the setup that you're working with. Whether you work with an RIA, whether you work with an RA, whether you work with an MFT, you will see that, there will be some plus and the some minus. If you want to work in a sort of a transparent manner, you want to get a comprehensive financial planning approach, it's best to work with RIA, but in that case, you have to pay the fee upfront. It's going to pinch you because you have to cut the check and give it. देखो, पैसा दे रहा हूँ, वैल्यू मिल रही है, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है. इज देयर अ टेस्ट एटसेट्रा दैट यू गाइस नीड टू क्लियर कि नहीं, उसने अब किसी ने सीए किया है तो उसको कम से कम जैसे टैक्सेशन के बारे में तो पता होगा ही ना, तो वैसे ही कुछ इसका टेस्टिंग वगैरह रहता है, तब आपको ये RIA का सर्टिफिकेशन ठप्पा मिलता है कि अच्छा हाँ इसको पता तो है. That is true. I think this is like a SEBI registered investment advisor. One of the biggest worries SEBI has with all of us is that it's like a seal that SEBI is giving it to us, right? So it does come with that sort of credibility. I think NISM certifications are involved before you can get the SEBI certification. You need to have certain amount of educational qualification. Till very recently, they also needed a minimum experience, but now they've sort of liberalized some of these things. Notice that, or are you seeing more people? अब जैसे you have been an RIA for what, a long time now? Yeah, more than 10 years. More than 10 years. तो you must be getting younger people कि अच्छा हाँ रोहित भैया मेरे को बताओ, मेरे को RIA बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए. Is it coming up as a legitimate career option for people? It is, it is much lesser than what one would have ideally liked to. एंड आप सही कह रहे हैं कि लास्ट 2-3 साल में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों ने तय किया है कि भाई हम RIA लाइसेंस सरेंडर कर देंगे. कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे जाके भी बताया है. टू सर्टेन एक्सटेंट उनकी कंसर्न सही भी थी क्योंकि कंप्लायंस बर्डन काफ़ी ज़्यादा था. पर अभी वेरी रिसेंटली सेबी ने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लाए हैं. तो ये सब चीज़ें कम हो रही है. मुझे तो बिजनेस मॉडल में ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा. मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई क्वालिटी एडवाइस की इतनी ज़रूरत है इंडिया में, इतनी ज़रूरत है. वो वही है ना, कोई अफ्रीका में एक सेल्समैन जाता है तो बोलता है गलत मार्केट है यहाँ पे तो कोई शूज़ नहीं पहनता है. दूसरा बोलता है कि जितने शूज़ बना सकते हो उतना भेज दो, यहाँ पे कोई शूज़ नहीं पहनता है. तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है. यहाँ पे इतनी डिमांड है, इतनी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की स्कोप है कि इवन इफ वी हैव 10,000 एडवाइजर्स इन द नेक्स्ट 3 years, they will never be out of job. That's the amount of the work that needs to be done on setting investors on the right path. Okay. तो आपको तो काफी टाइम हो गया, so I'm sure you will have a way of clients acquisition and stuff. But अगर कोई आज की डेट में RIA बन रहा है या बनने की सोच रहा है, तो कहाँ से कैसे? So when you started your career, how did you get your first few clients when you were setting up your business? तो ये तो काफ़ी कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला है जो सभी बिजनेस में एप्लीकेबल होता है. तो हमने भी किया है कि अपना फ़ोन बुक निकालो, उसमें से लिस्ट देखो. मैंने एक 300 लोगों की लिस्ट बनाई जो मेरे दोस्त थे, जो मैं IBM में काम करता था, सिटी में काम करता था, उन लोगों का लिस्ट बनाया. उन लोगों को कॉल करते गया. तो पूरा लिस्ट तो कभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. तो पहले 20-30 एंगेजमेंट वहीं से साइन हो गए. दोस्त फ्रेंड्स 20 कस्टमर मिल गए, फिर 20 मिल जाते हैं ना, तो फिर 21वां मिलने में दिक्कत नहीं होती है. दिक्कत पहले 20 की ही. तो रवि, आई थिंक आई शुड टेल दिस टू यू. ये है ना, धंधे के नियम है, ये पीढ़ी के नियम है. ये जनरली मोस्ट ऑफ द बिजनेस में एप्लीकेबल होंगे, बाय एंड लार्ज लिटिल बिट हियर एंड देयर. धंधे का पीढ़ी का पहला नियम ये है कि आप धंधे को 1000 दिन तक संभाल लो, रफली 3 years. फिर धंधा आपको जिंदगी भर संभालेगा. Second rule, I would say that, for you to sort of break even and start earning a good, income or a good salary from the business, it's usually about 5-7 years. Then, once you cross 8 years, 10 years, then that question doesn't come. Fair. That's the RIA part. Now, let's say if I come to you as a client, as in, हाँ Rohit, can you help me out? What does the typical process look like? And what does a typical client look like? कि किस टाइप के लोग हैं, मतलब जिसके पास में 1 करोड़ रुपया है वो आता है, या जो एक 50 साल का हो गया वो रिटायरमेंट के लिए आता है. So what sort of clients you get? And once you get them, what's the typical process like? It's like referral driven model. We typically work with corporate executives in 40s and 50s. Like any typical financial planning firm, हम लोग
ये ट्राई करते हैं कि आप कहाँ है अभी आपकी लाइफ में, कहाँ आप जाना चाह रहे हैं, आपके पास अभी क्या रिसोर्सेस हैं और क्या रिसोर्सेस आप एक्यूमुलेट करोगे और आपके कौन से गोल्स हैं। तो फिर एक बार एक ब्रॉड क्लैरिटी आ जाती है कि ये आप अचीव करना चाह रहे हैं, फिर उसका एक फाइनेंशियल प्लान बनता है कि इस तरह से ये गोल अचीव कर सकते हैं। एक बार प्लान बनता है तो फिर वो प्लान पोर्टफोलियो से फंड होता है। दैट्स द ब्रॉड लेवल अप्रोच। ओके, सो ये जो प्लान्स बनते हैं इसके अंदर वही अपना जो टीवी पे देखते हैं म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपीज एंड ऑल दैट, इट्स ब्रॉडली लाइक दैट, कि कुछ इसके अंदर एडवांस स्ट्रैटेजीज वगैरह कुछ रहती हैं, किस टाइप से रहता है? आई विश कि काफ़ी सारे एडवांस स्ट्रेटजीज होते हैं, बट ऐसा रियल लाइफ में तो जितना सिंपल रखे उतना ज़्यादा अच्छा होता है रवि। पर की ये है कि जनरली इन्वेस्टर्स फोकस ये करते हैं कि रिटर्न्स कितना मिलेगा, किस तरह से हम ग्रोथ ज़्यादा कर सकते हैं। सिक्योरिटी सिलेक्शन पे काफ़ी फोकस दिया जाता है जनरली एज अ टिपिकल रिटेल इन्वेस्टर। और आई हैव वन सबमिशन के as a retail investor, you may not know that you don't know. We know that we don't know. The future is uncertain, right? So हमारा generally focus ये होता है कि money or your portfolio is the means to the end, is not the end. तो आप ट्राई क्या कर रहे हो अचीव करने को? तो आपका गोल ये है कि मेरे जो गोल्डन ईयर्स है लाइफ के, रिटायरमेंट के, उसमें मुझे स्ट्रगल ना करनी पड़े। आप क्या ट्राई कर रहे हो कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम अर्ली चाहिए, सो दैट इफ आई वांट आई कैन क्विट अर्ली। और आप ये चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मुझे अच्छी तरह से पैसा का कॉर्पस करना है, या मुझे सेकंड घर लेना है, या मुझे वर्ल्ड टूर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा व्हाट एंड व्हाई क्लियर हो, कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक उसी के लिए जैसे मैं कहूँगा कि fire is a very good concept. It definitely appeals to us, and we feel that probably ikigai is the bigger concept than fire, because if we can find out what really makes us happy, something that I am good at it, something that I want to do, something that the world needs, and something that the world can pay me for, then And I have read the book, or मतलब at what my submission is, I remember having this conversation once कि फायर जो है दैट्स इसेंशियली एक्सेप्टिंग कि भाई इकिगाई नहीं हो पाएगा। सो यू आर वेरी क्लियर कि अच्छा हाँ, पैशन भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, यू आर नॉट, वो जो वेन डायग्राम उसका रहता है वो वेन डायग्राम के सेंटर में तो मिल नहीं पाएगा। सो एक्सेप्ट दैट एंड देन मे बी ब्रिंग मनी आउट ऑफ द इक्वेशन, और बाकी चीजें कि पैसा, थोड़ा पैशन मिल जाए, थोड़ी खुशी मिल जाए, यू मास्टर द क्राफ्ट। सो वो तो है, अगर if you can actually get to ikigai, nothing like that, there is no doubt about it. Well, coming back to the money part of it, so would it be, so fine, goals हैं, goals को कैसे अचीव करना है वो आप मेरे को बता दोगे, बट मैं आपके पास में आता हूँ, यार मैं खुद तो कमा रहा हूँ 14%, आप 16 कमा के दे दोगे क्या? नहीं, तो ये जो डिस्कशन है ना कि 14 तो मैं कमा रहा हूँ, उसके ऊपर आप क्या दोगे, तो इसमें कुछ चीजें समझनी ये जरूरी होती है कि जो कॉन्सेप्ट है रियल लाइफ इन्वेस्टर रिटर्न, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है, एक इन्वेस्टर रिटर्न होता है। अब सेंसेक्स का डेटा देख लीजिए, 35 साल से कुछ 14% CAGR अप्रोक्सीमेटली कुछ नंबर है। मुझे बताइए कि कितने लोगों को वो 14% मिला। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए रवि कि कितने लोगों ने 35 साल तक ऐसा रखा है? करेक्ट। So if you look at the work that many of these institutions have done, I think Morningstar has done some work, Axis has done some work in India, Dalbar has done some work in the US and Canada, and it looks like if Sensex is giving it 14, the real life investor return as an aggregate is around 8-9. So can we first come from 8-9 to 14 and then we will talk about alpha? And is peace of mind not an alpha? And is security selection the alpha? And is security selection the only alpha? Have you seen a number which says that instead of doing ABC security, if you would have done PQR security, you would have earned double than the Nifty? I have not seen that data. तो आई थिंक हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर को अल्फा जनरेट करना है तो फोकस ऑन A, B, C,
और ABC formula is very simple: asset allocation, behavior, compounding. Compounding, no need to explain. The longer you stay in the game, it's better for you. Behavior is, I think, it is not the market, it is not the economy, it is not the sector, it is not the war, it is not the interest rate, it is not the crude price, but it is our own behavior which can damage our plan. I think if there is one thing that we all need to watch out ourselves from to and save our portfolios from is our own behavior. And asset allocation is a very simple game. The more the growth assets you have in the portfolio, you can have more return. I am going to tell you one story. अभी रवि समझ लीजिए कि आप आपके घर में ना एक कुक को हायर करेंगे और आप कहेंगे देखो भैया सिंपल है कि अगर तुम्हारा खाना टेस्टी नहीं बनेगा ना, यू आर गॉन। अब ये तो बहुत इजी चैलेंज है कुक के लिए, क्योंकि जितना शुगर, बटर, चीज़, पनीर, ये सब चीज़ जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो, तो फूड इज़ गोइंग टू बी टेस्टी। ये जो अच्छा वाला कुक होता है उसको पता है कि बियॉन्ड द पॉइंट दीज थिंग्स आर नॉट हेल्दी। Same thing works in an asset allocation, in a multi-asset class portfolio, in a growth-driven portfolio, that chasing a high return beyond the point is a problem. और रिटर्न चेजिंग गेम में एक बहुत बड़ा इशू ये आता है रवि कि द मोमेंट वी शिफ्ट अवर फोकस फ्रॉम अवर गोल्स टू एन आउट परफॉर्मेंस, टू एन अल्फा, टू अ मैक्सिमम रिटर्न, देयर इज नो एंड. Then why mutual fund? Why not direct equity? Then why direct equity? Why not an FNO? Then why not a swing trade? Why not 3 month में double? Then why not Bitcoin? Then why not the real estate unregulated funding with the builders giving 24% per annum? इसका कोई अंत नहीं है. एंड मुझे एक बात बताओ रवि, अगर आप 12-14% से अगर अपने गोल अचीव कर सकते हो तो क्या कॉम्प्लिकेट करना जरूरी है क्या? क्या ज्यादा रिस्क लेना जरूरी है क्या? लालच, उसका क्या करेंगे? तो वो बिहेवियर प्रॉब्लम है. फेयर नहीं, मेरे को ये बहुत जल्दी ही समझ में आ गया था कि मैं 12 से 14 और 14 से 16 जाने की कोशिश करता हूँ तो 12 से 10 में आ जाता हूँ. अबाउट दी कपल ऑफ थिंग्स दैट यू मेंशन्ड, एक तो पहले about the mutual funds and direct equity, I'll get to that, but before that the asset allocation aspect that you're talking about. Now I understand आपका जो asset allocation होगा, मेरा जो asset allocation होगा, और जो देख रहा है उसका जो asset allocation होना चाहिए, वो सब अलग अलग होंगे. बट हाउ डू आई फिगर आउट कि मेरे लिए क्या एसेट एलोकेशन सही है? एक जो लिसनर है वो सुन रहा है, देख रहा है, उसको अरे बैठ के देखना है कि आज की डेट में सपोज वो 50-50 पे है या 10-90 पे है और वो 10 रियल एस्टेट, 90 इक्विटी और व्हाटएवर जिस पे भी बैठा है, क्या वो उसके लिए सही है, नहीं है? ये जजमेंट के ऊपर वो कैसे पहुंचे? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट एक सिंपल टेस्ट ये है कि सपोज if let's say Ravi, you have a 50% equity in your portfolio, and you know that peak से drawdown जो होगा, which means your portfolio can experience a temporary fall of let's say 30%. तो question ये है कि are you okay with that? And अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो मतलब मेरा 1,70,00,000 हो गया, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसका मतलब ये हो गया कि शायद आपका अग्रेसिव ज़्यादा है, उसको शायद थोड़ा कम करना चाहिए. अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मतलब ये तो मैं समझ में आता है कि ये 20-30%, 15-20%, आप फंड इंडिया का डेटा देख लीजिए. फंड इंडिया के जो ब्लॉग में डेटा है, ऑन एन एवरेज 20% ईयर का ऊपर और मैक्सिमम नीचे वाला सेंसेक्स देखेंगे आप, तो 20% वोलेटिलिटी तो वैसे ही होती है. और एक साइकिल 6 साल, 8 साल, 10 साल में वो जो 30-40% जो मार्केट गिरना है वो तो गिरना ही है. तो वो आप टॉलरेट कर सकते हैं कि नहीं? तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड whatever is right ratio for you. काफ़ी सारी स्टडीज की गई हैं इसके ऊपर. तो आई थिंक इफ यू आर अ DIY investor, you may want to sort of look up to some of these researches, look at a different combination of portfolio. और ये ज़रूरी है कि अगर मैं ये देखता हूँ कि अच्छा मैं रवि को लेके गया हूँ होटल में और मैं राइट साइड नहीं देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, जो सबसे सस्ती चीज़ है वो मैं रवि के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ. इसी तरह से मैंने एसेट एलोकेशन चार्ट देखा, अच्छा 100% इक्विटी में मेरे को सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो गलत तरीका है, क्योंकि आपको रिटर्न के साथ रिस्क भी देखना है, आपको ड्रॉ डाउन भी देखना है, आपको रियल रिटर्न भी देखना है. तो उस तरह से आप देख सकते हैं. ओके, एंड कांट आई आउटसोर्स दिस एसेट एलोकेशन डिसीजन टू लेट्स से अ फंड? जैसे कि आजकल बहुत सारे मल्टी एसेट फंड्स, दे हैव बिकम रियली पॉपुलर इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, बट
there are funds which have existed for even the last 20 years, जैसे एक ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड है कि भाई तुम रख पैसा, तुम डिसाइड करिए कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, इंस्टेड ऑफ मी टेकिंग दैट कॉल कि मेरे को क्या रेशियो रखना चाहिए. वुड दैट वर्क बेटर? बिकॉज जो आदमी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड चला रहे हैं उनको मुझसे तो ज्यादा अकल है ना कि कब क्या करना चाहिए. इट कैन वर्क. डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और ऐसे कुछ ऑप्शंस डेफिनेटली है जहाँ पे आप अग्रेसिव हाइब्रिड है, मल्टी एसेट क्लास फंड है, बैलेंस एडवांटेज फंड है. दे कैन श्योरली वर्क इन योर फेवर. At different stages in your life, you will have a different need. Just to make sure that you're perfect and you're not able to start, then it is better that you start with something. But as you will take more step, अभी मुझे यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ वही दिख रहा है, पर वहां जाऊंगा तो मुझे आगे का रास्ता दिख जाएगा. करेक्ट? तो ये चीज समझना जरूरी होता है कि all product structures will have some limitations. For example, anything which is trying to curb volatility will also curb returns in the long run. Yes. तो उसमें वो डेट का रहेगा तो वो तो नहीं देगा ना रिटर्न. Correct. A hybrid structure may also work out expensive. A hybrid structure also doesn't allow you to rebalance the portfolio the way you want. But it may be a good idea for you to start with. Maybe a good idea for you to, sort of try it out, look at the NAV fluctuation, understand that, and then slowly, get to the next level. Fair. Now, the other part that you talked about कि अच्छा हाँ मतलब म्यूचुअल फंड में डालूं कि मैं डायरेक्ट इक्विटी करूं कि एफएनओ करूं कि वो सब करूं. तो देखो एफएनओ और उसके आगे वाली चीजों तक तो मैं कभी पहुंचा ही नहीं, सो आई डोंट नो. बट आई एम समवन हु हैज प्रॉब्ली 90 to 95% ऑफ माय नेटवर्थ इन म्यूचुअल फंड्स. डायरेक्ट इक्विटी मैंने कई बार करने की कोशिश की है. एक तो ये था कि मैंने स्टार्ट किया था अर्निंग 2007 में, तब मैंने इक्विटी किया था और 2008 तक आते आते अकल आ गई थी, तो उसके बाद में फिर बहुत ज्यादा हिम्मत हुई नहीं. बट I do get tempted to do the direct equity part. So, when do you think that this sort of transition should be made, if it should be made from mutual funds to equity? And even when you are talking about mutual funds, in mutual funds also you can take an approach कि भाई किसी को कुछ नहीं पता है, I'll probably get an index fund or something like that, versus an active fund where there is presumably there is a very smart guy and very ethical guy who is managing the mutual fund. तो इन तीन के अंदर मेरे को कब कहाँ कैसे पिक करना चाहिए, passive fund, active funds and direct equity investments? See, this discussion is having an assumption that there is an alpha in the security selection. अगर मैं A नहीं करूँ, मैं B करूँ, B नहीं करूँ, मैं C करूँ, तो मैं मतलब ये अच्छा रास्ता है, ये ज्यादा फायदा है. पता नहीं है ना मेरे को, इसलिए तो मैं एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ कि भाई क्या करना चाहिए. I'm just giving you the 3 options which exist in my universe. एक छोटी सी कहानी है कि एक बड़ा पर्वत है, उसके नीचे सब लोग ऐसे ऊपर जाने के लिए खड़े हैं वहां पे, और सब डिबेट कर रहे हैं यार वो पीछे वाले रास्ते से चले जाते हैं, वो है ना फटक से लेके जाएगा. अरे नहीं नहीं यार, यहाँ से जाते हैं, यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना है यार. नहीं नहीं, यहाँ से जाते हैं ना, ये इसमें बारिश नहीं आएगी. तो क्या है कि अगर जब आप चलने लगो, जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा कि सारे रास्ते ऊपर ही ले आते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी सिलेक्शन अल्फा इज अ क्वेश्चन मार्क. व्हेन यू लुक एट अ वेरी लॉन्ग टर्म रिटर्न परफॉर्मेंस, the underlying returns comes from the asset class, and you have these various forms of securities. We are not sure if there is so much of an alpha in the security selection, A versus B versus C. We feel the alpha formula is ABC, asset allocation behavior compounding. Make sure that you're focused on your plan, not on your market, not on the market. Keep working on the plan, don't keep reacting to the market, and make sure that you stay put for a very long period of time, and see what is the level of the mix that you have in your asset allocation portfolio, which allows you to have a decent amount of growth with a manageable volatility. I think ये चीज पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है. ये पहली बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि प्ले मनी का एक कॉन्सेप्ट है, एक सीरियस मनी का कॉन्सेप्ट है. प्ले मनी का कॉन्सेप्ट ये है कि
थोड़ी खुजली आ जाती है, जैसे आपने कहा कि थोड़ा डायरेक्ट इक्विटी कर लेता हूँ। आप आपका पोर्टफोलियो आपकी नेटवर्थ का 1% 2% से आप प्ले कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर गोल्स। सीरियस मनी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना कि ये करना चाहिए, नहीं नहीं ये ज़्यादा वाला है, मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ये नहीं करूँगा, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख, तो ये सब ओके है। द मोमेंट यू हैव मोर देन दैट, you have what we would call it as a serious money, तब एक डाउट आता है, एक सेल्फ डाउट आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आई थिंक नाउ आई नीड अ वैलिडेशन, नाउ आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव अ राइट प्लान इन प्लेस। What you are asking are some of the decisions that experts need to take, not an investor. There are things that you do as an investor, there are things that an expert does as an investor. Your responsibility is behavior, saving, compounding, your income growth, decisions on your goal, retaining control, and asset allocation, security selection, rebalancing of the portfolio. These are all in the advisor domain. So it might be a good, you know, based on the level of the wealth that one has, it might be better to consult the person who is rightly, qualified. But I'm not sure if there is an alpha in some of these. If you're going to build a diversified portfolio of stocks and 12-15 सेक्टर है, हर सेक्टर में आप 2 स्टॉक लोगे, 25-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनेगा। आप 25-30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के ऐसा आपको लगता है कि 10 साल में आपको निफ्टी से डबल मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता है, मैंने ऐसा डेटा नहीं देखा है। आई थिंक वी नीड टू शिफ्ट अवर फोकस फ्रॉम अल्फा to our own performance, our own goal. And you will remember रवि के वो जो फॉर्मूला है फाइनेंशियल प्लानिंग में, FV फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू PV ब्रैकेट में 1 प्लस R ब्रैकेट पूरा रेस्ट टू N। ये पूरा डिस्कशन जो है वो R पे हो रहा है। Fair. So let's talk about the N part of things, and people I assume would come to you for their retirement planning as well. Now, मैं जैसे भी पूछता हूँ, बोलता हूँ कब चालू करनी चाहिए रिटायरमेंट, जिस दिन से कमाना चालू कर रहे हो करनी चाहिए। वैसा होता नहीं है, as you would know with respect to your clients. What is the typical age that you see people start to think about the traditional retirement के लिए planning करने के लिए, and I'm sure you would also get some clients who are planning to get to financial independence and then sort of early retirement. What is the typical age that folks start thinking about the FIRE part of it? I think जो ट्रेडिशनल रिटायरमेंट है वो मतलब 40s में ही यूजुअली एक थोड़ा सा रियलिटी चेक आता है, एक शॉक आता है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में 60s थे वो आज 40s हो गए हैं। Vulnerability, income, job, all these have become issue for many of us. And from that point of view, I think usually most families realize in 40 that I still don't have a plan and I need to put in place a plan. I think that's where the seriousness about retirement kicks in. जो फायर वाला है, जो अभी 20s में है और 30s में है, वो मतलब 60 के रिटायरमेंट की तो मतलब सोच ही नहीं रहे हैं कोई, पर सभी को ये ज़रूर है कि मतलब मेरे को फायर करना है। अब मैं RE के बारे में श्योर नहीं हूँ, मैं FI के बारे में बहुत श्योर हूँ कि इट्स हमेशा ये अच्छी बात है कि हमारे पास कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। तो फिर कब मन कर दिया, हमने लाला को कह दिया नहीं चाहिए तेरी नौकरी, तो वो बोलने के लिए अपने पास पैसा भी तो होना चाहिए। Is there any sort of a particular strategy or some sort of funds कि नहीं यार इसमें फंड में पैसा डालो, और any particular pattern or any particular advice that you give to your clients for FIRE कि सारा पैसा बिन आंख मूंद के तुम PPFAS के फ्लेक्सी कैप फंड में डाल दो, और anything like that, any actionables that you suggest to नहीं, वैसा तो नहीं करना चाहिए। और इंडिया में तो खैर वैसा नहीं है ज़्यादा, बट US में ऐसे 20-40 टारगेट रिटायरमेंट वैसे फंड वगैरह बहुत होते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो जैसे 20-40 के नज़दीक आ जाएंगे वो इक्विटी कम कर देगा। करेक्ट? एंड यू नो दैट देयर कैन बी नो बिगर डैमेज देन दिस, राइट? बिकॉज यू हैव स्टिल हैव 40 मोर इयर्स टू गो लास्ट। यस, करेक्ट। तो ऐसा कोई सिंगल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफाइड
asset allocated, optimized, rebalanced, globally diversified portfolio is one of the best options that the investors in India have today. You can use various instruments, but keep in mind that उसके अंदर भी टियर्स बना सकते हैं आप, क्योंकि बेस जो है आपके घर का वो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जितना आप चाहे बना सकते हो। अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं बना है तो आप कैसे स्केल अप करोगे? तो ये ज़रूरी है कि डाइवर्सिफाइड एसेट से बेस बनाओ। दैट इज़ वेयर अगर आप ये कहोगे मैं तो अमेजोन में काम कर रहा हूँ और मेरा तो मतलब ये जो है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड इतने सारे स्टॉक ऑप्शंस है, तो जिसको आप कॉन्सेंट्रेशन देखते हो उसको हम लोग अंडर डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। पोर्टफोलियो को अंडर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई फायर के लिए अलग पोर्टफोलियो बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि अच्छा रवि आपको फायर करना है, मैं आपके लिए एक अलग टकाटक पोर्टफोलियो बना देता हूँ, और रवि आपको 60 वाला रिटायरमेंट है, आपके लिए अलग पोर्टफोलियो, ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि ये पोर्टफोलियो जल्दी कमा सकता है, ये लेट कमाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो सिक्योरिटी सिलेक्शन वाला अल्फा तो नहीं लग रहा मेरे को। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में हमको ये लगता है कि फोकस रिटायर अर्ली पे नहीं हो सकता, क्योंकि बिगर प्रॉब्लम ये होता है कि हम करेंगे क्या, what are we going to do, how are we going to stay occupied, how are we going to be productive to ourselves and to the society. And I think that is where, like I said, we need to pay more attention to things like ikigai than the fire part. Fair. I think there was a अभी मतलब हम लोग रिकॉर्ड करने अभी बैठे हैं, उसके पहले हम 15-20 मिनट गप मार रहे थे। Rohit did tell me a story about the Stanford students. So can you just tell that to the audience? And there are a couple of lessons built in that. श्योर। कहानी ये है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा, काफ़ी फेमस केस स्टडी है ये। स्टैनफोर्ड में बैच को एक बार कहा गया था कि you have the starting capital of $5 and you have to come out with the best business ideas। और उनको कुछ प्रिपेयर करने के लिए टाइम दिया गया था और उन्होंने पूरे बैच बना दिए थे अलग अलग। उनको कहा गया था कि आप टाइम ले लीजिए, 2-3 घंटों में आके आपको बैच को प्रेजेंट करना है, यू विल गेट 3 minutes टू प्रेजेंट योर आइडियाज। तो अब स्टैनफोर्ड वाले तो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, तो दे ऑल केम आउट विद ग्रेट आइडियाज़ और सबने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए थे। There were 2 ideas that were different and they sort of won the this competition। तो एक बैच ने ये किया कि स्टैनफोर्ड के जो यूनिवर्सिटी का एरिया था, वहाँ पे जो रेस्टोरेंट थी, वहाँ पे वीकेंड पे रिजर्वेशन नहीं मिलते थे। उन्होंने वो रिजर्वेशन बनाए और स्टूडेंट्स को बेचे। दे क्रिएटेड सम रेवेन्यू and they generated a profit। Second batch, they sold that 3-minute slot with the Stanford batch to a Fortune 500 company to make a placement talk। They generated some $600 revenue, so they did 120x of the $5 capital। तो डिफरेंस ये था कि ये जो 2 विनिंग टीम थी, उनको ये पता था कि केस स्टडी में $5 डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा गया था। रियल वैल्यू $5 नहीं था, रियल वैल्यू था स्टैनफोर्ड की बैच थी, और स्टैनफोर्ड की बैच के साथ की 3 मिनट थी। तो इसी तरह से मुझे लगता है रवि, ये जो फायर की डिस्कशन है वो $5 है, 3 मिनट कुछ और है, और वो 3 मिनट आपको ढूंढना है कि आपका जो पॉइंट बी है, आप पॉइंट ए है, आप पॉइंट बी पे जा रहे हैं। पॉइंट बी पोर्टफोलियो नहीं है, पॉइंट बी 25% रिटर्न नहीं है, पॉइंट बी इज नॉट 10 crore wealth or 20 crore wealth that will enable fire to you। Point B is something else, and we have to discover that point B. Is that a good quality life in my golden years? Is that a decent education corpus? Is that a peace of mind? Is that an ability to do something else if I want to? Is that a world tour? Is that a second home? Is that a dream home? And I think that is where we have to differentiate between the $5 and the 3 minute। Fair. Great point there। एक I'll just go back to a little while ago, आपने बात की ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। फंड तो सारे बंद करवा दिया आपने कि नास्डैक का, S&P का, ऑल ऑफ दैट। मेरे को करना है ग्लोबली डाइवर्सिफाइड। आर देयर एनी इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर reliable as a mutual fund, and B easy to implement, जिसके अंदर वो टैक्स वैक्स के उतने लफड़े नहीं हो? बिकॉज द ओनली रूट दैट आई एम अवेयर ऑफ राइट नाउ इज पैसा अमेरिका भेजो और फिर वो आई थिंक LRS स्कीम होती है जिसके थ्रू भेज के वहां पे आप खरीदो और वहां पे इन्वेस्ट करो।
Are there any other routes, anything else that you can suggest for a global diversification which is possible today? नहीं, आई थिंक आपने pretty much कवर किया। जो इंडिया के जो फीडर फंड्स है वो यहाँ से पैसे लेके वहाँ पे जाते हैं, वो सबसे आसान वाला तरीका है। और ये जो LRS के थ्रू जो आप कर सकते हैं वो एक तरीका है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एंड यू कैन वर्क विथ एनी वन ऑफ देम। एक चीज़ यहाँ पे सोचने जैसी है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी कभार ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि मैं तो यूएस में डायरेक्ट एप्पल खरीद लूँगा, मैं बर्कशायर हाथवे खरीद लूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से पैसे भेजूँगा। थोड़ा सा ग्लैमरस भी लगता है। और जैसे आपने कहा कि एक बार आप करोगे तो पता चलेगा कि वो टीसीएस में और वो बैंक रेमिटेंस में बहुत दिमाग खराब हो जाता है। मैंने किया नहीं, मैं इसी डर के मारे नहीं किया है। तो ये जो फीडर फंड्स की भी बात कर रहे हो, फीडर फंड्स अपने यही वो जो नास्डैक वगैरह वाले जो फंड्स हैं कि, और आर देयर समवन जैसे एक मोतीलाल ओसवाल का था वो बंद हो गया, S&P 500 वाला। आई थिंक इन्वेस्को का एक नास्डैक वाला था वो भी बंद हो गया है। तो व्हाट आर दीज फीडर फंड्स दैट यू आर टॉकिंग तो अबाउट? काफ़ी सारे फंड्स हैं और नास्डैक 100 के हैं, S&P 500 के हैं, काफ़ी सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं, कुछ कुछ रसेल 2000 में, रसेल 3000 में, ऐसे काफ़ी सारे फंड है इंडिया में। पर अभी मोस्ट ऑफ दीज आर अंडर रिस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ दैट RBI लिमिट। हाँ वही, तो उसके वजह से मोस्ट ऑफ दीज फंड्स, वेरी वेरी फ्यू ऑफ देम आर एक्सेप्टिंग मनी राइट नाउ। So we did talk broadly about what strategy should be from a very long-term basis, but coming to the current scenario, we are recording this in early 2025, Jan 2025. Has your advice changed? Are you seeing, bad times coming in? Or what's your outlook on the market, so to say? You know, very long answer to this short question, Ravi, but I'll try and keep it short. तो हमें ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टिंग के जो बेसिक्स हैं वो तो चेंज नहीं होते। और एक एग्जांपल मैं दूंगा कि शायद मैनकाइंड को 5000 ईयर्स पहले तलमूद ने एसेट एलोकेशन का रूल दिया था। Apparently he said that let every man keep 1/3 of his wealth in properties, 1/3 in businesses and 1/3 with himself। मतलब 33% रियल एस्टेट, 33% इक्विटी, 33% कैश। तो जो फंडामेंटल्स हैं वो तो चेंज नहीं होते। एंड एट द सेम टाइम इन इन्वेस्टिंग वी कांट कीप अ फिक्स्ड माइंडसेट। The world is changing, you know, and as the things change we have to react to them and we have to realign, our strategies, our portfolios. And I'll give you a couple of examples that how, we see things are changing. We feel that, taxation is changing the defensive product strategy, that indexation has been taken away on the debt funds. And last budget they tried to bring in parity in terms of long term definition and the tax rate. So I think that needs a rework on how we are designing the portfolio. And the interest rates are changing. We need to sort of relook at some of the duration of the portfolio and see what do we need to change. In a situation today, a non-correlation benefit is very important. That's where an asset like gold could be a good idea for most portfolios. It's very hard to sort of, react to what is happening. So we will never recommend to time the market or go underweight or do something. And from that point of view, nothing really changes. But it's a time to be cautious. When you see that the returns in the recent period is ahead of 20% or 25%, or let's say, you're seeing a 10% alpha on a long-term average, then we have to remember that stock market में reversion to mean ये एक बहुत powerful principle है। वो कहते हैं ना कि love your neighbor पर दरवाज़ा बंद करो। तो इसी तरह से हमको आँख खुली रखनी है। हमारी कोई टाइमिंग नहीं कर सकते, हम कोई रिएक्ट नहीं कर सकते, बट वी हैव टू बी केयरफुल, कीप अ वॉच एंड कंटिन्यू फोकसिंग ऑन अ लॉन्ग टर्म प्लान। So do clients come to you with concern? I'm sure some of them would कि भाई मार्केट तक गिर गया है, क्या करना है, और गिरेगा क्या, should we sell, should we buy? Some of that reaction is very human। और ऐसा नहीं कि अभी
30% गिरा है, 40% गिरा है, 10-12% कुछ करेक्शन आया हुआ है, छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं है। और एक अच्छे बुल रन में ये हेल्दी करेक्शन भी कहा जा सकता है। तो जनरली 15-20% तक नहीं गिरेगा जब तक, तब तक हम लोग उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं नहीं है। देंगे, इतना ज़्यादा हम लोग उसको नहीं देंगे, वॉच करते रहेंगे। वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं, वो देखने पड़ते हैं, अर्निंग्स के लेवल देखने पड़ते हैं, इकोनॉमी की सिचुएशन देखनी पड़ती है, एफआईआईस के फ्लो देखने पड़ते हैं, रिटेल, एसआईपी का साइज, पैरामीटर्स। तो होमवर्क जो है, दैट यू हैव टू कीप डूइंग इट, बट वी आर नॉट गोइंग टू जंप से ओ वाओ दिस इज अ 10% करेक्शन, so that's normally not the case. Fair. I think we have recorded a slightly longish episode. So before we end, any recommendations for our viewers, for our listeners? 2-3 रिकमेंडेशन शायद मैं देना चाहूँगा रवि। एक तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जनरली मैं ये देखता हूँ कि सब लोग ये जो रिटर्न्स की अल्फा है उसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं, और इंटरनेशनली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो जैसे कि एक तो एनुअलाइज रिटर्न के अलावा एब्सोल्यूट रिटर्न पे भी देखना चाहिए। तो अगर मैंने 10 साल में मैंने 50 लाख लगाया था और मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 1 करोड़ हो गया, तो मैंने 50 लाख का मुनाफा बनाया है, तो मैंने एब्सोल्यूट रिटर्न 100% का कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने सुना होगा मल्टी बैगर, 5 बैगर, 10 बैगर, वो कहाँ से होता है? तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न के ऊपर ही फोकस करना पड़ता है कि कंपाउंडिंग तभी होती है। तो आई थिंक ये एक मैं आपके फॉलोअर्स को रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट में रिटर्न हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो का चर्न मेजर करते रहना ज़रूरी होता है कि अगर हम एक रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, उसमें हाई चर्न वाला रिजल्ट और लो चर्न वाले रिजल्ट में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि हाई चर्न विल ऑब्वियसली मीन आपकी कैपिटल गेन टैक्सेशन, शायद एग्जिट लोड, शायद ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमको जब पोर्टफोलियो हम कोई चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हमको उसका चर्न देखना ज़रूरी होता है। So the idea is that basically इतने बड़े को छोटे में कि भाई प्लान बना लो और वो 12% का 14% करने की कोशिश बात करो. So on that note, thanks a lot, Rohit. Sure. Thanks for taking out time and coming to the show. My pleasure. And to everyone watching, please remember to like and subscribe, क्योंकि जब तक ज़्यादा likes और subscribers नहीं आएंगे तब तक रोहित जैसे लोग शो के ऊपर नहीं आएंगे. So please do that. Thanks for watching.